Good afternoon, everyone. I'm Divya from Ramjas English Department from the batch of 2023. I am an ex-student. I did my graduation over there. And as we all know about the news that 8 out of 10 professors have been displaced all of a sudden from our department without any prior notice. And uh, it puts a stake not just on our mental health, it puts a stake on their mental health as well. All of a sudden, all these professors who have been relentlessly, tirelessly working on our education, not just giving us academic support, but I would say, in my personal experience, they gave us such a healthy, nurturing environment, such a safe space to not just think academically or critically, but to know our identities, to get to know our identities more. And all of a sudden, all of them are just displaced, which not just affects the academic, the education of the current batch, but it puts a stake and it puts a big question mark on the degradation of the academic quality of the institution, of the entire university. And the same thing is not just happening in my department, in the Ramjas English department, but the same thing is happening in other departments, in other spaces. The professors who were called progressive or who chose to spoke out, they were chosen, and they were they got removed all of a sudden. And I also came across this, that two of my professors who got their PhD recently, two of them, I would not like to mention the name, but two of them research topic was named, I would say highlighted as anti-national, which puts a big question on their entire years of dedication, time and efforts. And this, I would say, not just breaks our heart, because a simple a department, a space is not built up like from just 1 year, or just with the effort of 2 years or 3 years. It is entirely a process of years together to form such a progressive department and to provide such a space to students. And I would say Ramjas English department is considered one of the best departments from years altogether. And all of these things, things which happen this suddenly, chose all of the students union, all of the students to rage, to voice their opinions against this injustice, against this academic degradation. Thank you. Can I request Anamika? Good morning all, I'm Anamika. I'm the Secretary of Student Union of Zakir Hussain Delhi College, and I'm doing a Bachelor's in Political Science in 3rd year. So, Just if you come into the center, because the mic is here. so we all know the teachers who have been teaching us for the last 14-15 years have been displaced in just 14 minutes interview. Like for the past 2-3 days, I'm getting a number of texts and calls from students asking me where is our professors. And we came to know about the displacement, or about the dismissal of our professor in Zakir on Sunday. Then we went for a GPM on Monday, and that time around 40-50 students joined us in the GPM. And many people, like most of them, are very angry and they were very emotional. Like they were asking us where are our professors, what happened to them? Like, because no one knows what is happening, and like it's that much intransparent. The intransparent process is happening in our college. And after that, like after the GBM, we decided to go for the protest, go for the protest, and we did a 3-day protest. And yesterday, when we were protesting, another professor came and told us that you're not going to get any outcome from this protest. He also was so emotional. He told us that you're not going to get any outcome from this. Now you have showed the dissent of the students against this displacement, against the whole, like the adochism. So now, like you're not going to get any outcome, so you have to stop this. He told us that. And after the protest, we went for another meeting, another review meeting,
and people, all the students were against us stopping the protest. They were saying us that we shouldn't be stopping the protest, we shouldn't be stopping the movement that we have initiated on Monday. So this is the spirit, this is the anchor that the common students are having. So they are concerned about their academics. They are asking me like where are our professors, and replacing professors who have been teaching us for the 14 to 15 years, who got high API index, who got around 96 marks, 96 API index, by unexperienced teachers, is a clear attack on our public education. Our public education, it's a clear attack on our public education. And now who will, like, from where will we getting the quality education that we all deserve? So students are so angry and they are so emotional. And dear professors, our beloved professors, you all are not alone in this fight. We all are with you. That's all. Thank you. May I announce the next name? Yeah, it's Aishwarya from Hindu College. मैं अभी अब थोड़ी ओवरवेल्म्ड हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर्स को सुना, और एक स्टूडेंट होने के नाते हमेशा से खुद को प्रोफेसर्स के रिफ्लेक्शन में देखा है। मैं चाहती हूँ खुद के मैं एकेडेमिया में जाऊँ, खुद को जब भी मेरे प्रोफेसर पढ़ाते थे तो मैं सोचती थी कि एक दिन इनके जैसे बनूँगी। तो जब उन प्रोफेसर्स को सुन रहे हैं और पता लग रहा है कि वो 14 साल पढ़ाने के बाद आज यहाँ पर आकर उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हमको इस वजह से टारगेट करके निकाला गया या हमको 4 मिनट के इंटरव्यू के बाद निकाल दिया गया, तो मुझे लगता है कि उससे जो स्टूडेंट्स हैं जो खुद को इन रिलेशन विद द टीचर कम्युनिटी देखते हैं, उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी बढ़ जाती है, जो मैं अभी पूरी तरह से फील कर पा रही हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं हिंदू कॉलेज में सोशियोलॉजी की 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरे खुद के डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही 2 ऐसे प्रोफेसर्स को निकाल दिया गया था जो कि एडहॉक थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, जो करीब 7 साल से वहाँ पर पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर्स का नाम अभी लेना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे को याद है कि उनमें से एक प्रोफेसर का जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर का आखिरी दिन था तो वो क्लास में आके हम सब बच्चों को बोले थे कि आप सब मुझे पेपर पे एक छोटा सा फीडबैक लिख के दीजिए, आप हमें बताइए कि मेरी क्लास में आपको कौन सी चीज़ें थी जो अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें मैं बेहतर कर सकता हूँ अगले सेमेस्टर में। तो शायद उनको भी नहीं पता था कि अभी थोड़े दिन बाद ही उनका एक 3 मिनट का इंटरव्यू लेकर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और वो शायद इस कॉलेज में एज ए प्रोफेसर दूसरे सेमेस्टर में नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसे में जो स्टूडेंटशिप पे इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ रहा है, किस तरह से स्टूडेंट कम्युनिटी को तमाम तरीक़ों से खामोश कर दिया गया है। मेरे डिपार्टमेंट से 2 प्रोफेसर्स को निकाला गया। हम कैंटीन में छोटे ग्रुप्स में बैठ के डिस्कस ज़रूर करते थे कि नए प्रोफेसर्स आए हैं, वो भी गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, पता नहीं वो कितना सेमेस्टर रहेंगे, लेकिन हम सब कभी ऑर्गेनाइज्ड होकर उस चीज़ को बोल नहीं पाए। ऐसा शायद इसलिए भी था क्योंकि डिपार्टमेंट के बाकी फैकल्टी ने भी क्लास में कभी उस चीज़ को डायरेक्टली उठाया नहीं, तो हमें लगा कि उस जो स्टूडेंटशिप का एक साइलेंस से एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा कैंपसेस में हमें दिखता है। दूसरी चीज़, जैसे कि अनामिका ने बोला कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है इसमें। आप थोड़ा 4 मिनट का इंटरव्यू लेकर आप प्रोफेसर्स को डिस्प्लेस कर रहे हो, लेकिन जब मेरे डिपार्टमेंट में डिस्प्लेसमेंट हुई थी किसी ने किसी डिपार्टमेंट के एक भी बच्चे से नहीं पूछा कि ये प्रोफेसर आपको पढ़ाने में कैसे लगते हैं, या स्टूडेंट्स का फीडबैक कोई नहीं मांगता है। एडमिन कभी भी ये नहीं बोलता है कि स्टूडेंट्स बताएं कि ये प्रोफेसर आपको अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, आपको उनका पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। वो दोनों प्रोफेसर्स, जैसे कि अभी बात हो रही है कि एकेडमिक डिग्रेडेशन की, वो दोनों प्रोफेसर्स अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी टॉपर्स रहे हैं। वो दोनों प्रोफेसर्स जब हमारी बातचीत होती थी तो बताया करते थे अपने रिसर्च पेपर्स के बारे में, अपनी PhDs के बारे में, अपनी रैंक्स के बारे में। इसके बावजूद उन्हें हटाने के क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में कुछ किसी को पता ही नहीं है। उन दोनों को हटा दिया गया, 2 और गेस्ट फैकल्टी आ गए हैं, उनसे कहीं ना कहीं अभी हम दोबारा से, क्योंकि जब एक स्टूडेंट और प्रोफेसर की बात है तो वो सिर्फ किताब तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट और प्रोफेसर का एक बहुत ही इंटीमेट रिश्ता होता है, वो रिश्ता बनाने में समय लगता है। आप 2 सेमेस्टर के बाद 3 सेमेस्टर के बाद प्रोफेसर्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं, नए प्रोफेसर्स ला रहे हैं, तो जो दिक्कतें हमें स्टूडेंट कम्युनिटी को अकोमोडेट करने में हो रही है उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। फिर 2 गेस्ट फैकल्टी आ गए और अभी किसी को पता नहीं है कि वो कब तक अभी रहेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं हिंदी डिपार्टमेंट में, वहाँ पर भी सेम हुआ है, काफ़ी सारे प्रोफेसर्स वहाँ पर भी डिस्प्लेस हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जो टीचर्स का कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट चल रहा है बिल्कुल ही आर्बिट्ररी तरीके से, बिल्कुल ही नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से, उसका सबसे अगली उदाहरण हिंदू कॉलेज है जहाँ से मैं आ रही हूँ।
क्योंकि फिलोसफी डिपार्टमेंट में शायद बहुत लोग नहीं जानते क्योंकि उसकी कोई रिपोर्टेज ही नहीं थी, उसके बाद कोई कवरिंग ही ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन प्रोफेसर समरवीर, उनको जब बहुत थोड़े समय के इंटरव्यू देने के बाद, जबकि वो कितने साल से पढ़ा रहे थे, उनको निकाल दिया गया और वो जाकर सुसाइड कर लेते हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन 6 महीने लगाता है उसके बाद एक शोक सभा रखने में, जो अभी हाल ही में रखी गई। 6 महीने तक हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। 6 महीने तक किसी प्रोफेसर ने ऑफिशियली नहीं बोला कि समरवीर के साथ क्या हुआ, उन्हें क्यों निकाला गया। उनकी सुसाइड को तमाम कारणों के साथ जोड़ दिया गया कि ये कारण था, उनको स्ट्रेस था, उनको एंग्जाइटी थी। पर किसी ने ये बात नहीं करी कि वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी का उनके अनएम्प्लॉयमेंट से, इतने साल एक कॉलेज में दे देने के बाद अचानक से निकाल देने से क्या रिश्ता हो सकता है, क्या प्रोबेबल एसोसिएशन हो सकता है, इसको आगे हम कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि और डिपार्टमेंट्स में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर चलती रहती है। समरवीर सर की डेथ होती है और उसके 2 दिन बाद इस कॉलेज में मेका हो रहा होता है, जो कि हमारा एनुअल फेस्ट है, जहाँ पे सब लोग, सब प्रोफेसर्स, पूरा फैकल्टी जाकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो एक माहौल बना दिया गया जहाँ पर एम्पैथी नहीं है, बल्कि हम बहुत एपैथेटिक हो गए हैं। हम बहुत इंडिफरेंट है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा है कि मेरे ही डिपार्टमेंट के 2 प्रोफेसर्स निकले, बगल वाली क्लास में पढ़ाती हुई टीचर निकल गई, उसके प्रति कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो साइलेंस को स्टूडेंटशिप से जोड़ दिया गया है, मुझे लगता है ये जो टीचर और स्टूडेंट का एक इंटीमेट रिश्ता है, उसको बनने से जो बार बार रोका जा रहा है, बार बार डिस्प्लेसमेंट करी जा रही है, और जो प्रॉब्लम स्टूडेंट कम्युनिटी को आ रही है, उसके बारे में आज बात हो रही है। अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है और बात करने की।